ভাৰত মাতা কি যাৰ এখনত আছে ই এখনত উঠালে হ'ল যাৰ দুখনত আছে দুখনত উঠাব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মঞ্চত উপবিষ্ট আজি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা গুৱাহাটী মহানগৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই নৱভোটাৰ এক মত বিনিময় অনুষ্ঠান ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰা মঞ্চত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সন্মানীয় সমন্বয়ক সম্বিত পাত্ৰা ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক জি আৰ ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুজী সন্মানীয় ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মানীয় জিলা সভাপতি তপন দাস ডাঙৰীয়া হীৰকজ্যোতি তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি মঞ্চৰ সন্মুখত উপবিষ্ট আজিৰ আগন্তুক প্ৰজন্মৰ দেশৰ ভৱিষ্যত নৱভোটাৰসকললৈ আজিৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱসত মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মূল উদ্দেশ্য এটাই যে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশখনত আমি আগন্তুক প্ৰজন্ম যিটো প্ৰজন্মই আগন্তুক সময়ত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক সুসংগঠিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক সন্মিলিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক কনষ্ট্ৰাকটিভ ৱেত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব যিহেতু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্বৰ ক্ষেত্ৰত বা দেশৰ এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব থাকিব যে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক আমি সুসংগঠিতভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ প্ৰজন্ম তথা আগন্তুক প্ৰজন্মই এটা গঠনমূলক চিন্তাৰে ভাবাৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আজি ইয়াত যিমানবিলাক উপস্থিত আছোঁ প্ৰায় সংখ্যকে নৱভোটাৰ এবাৰ সকলোৱে হাত দাঙিব ইয়াত নতুন ভোটাৰ যিমানখিনি আছে এবাৰ হাত দাঙিব নেকি নৱভোটাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোটাৰ্ছ এবাৰ আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ হাততালি বজাওক এই কাৰণে যে আপোনালোকে ২৬ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত এটা নেতৃত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক মই ভাবোঁ যে আগন্তুক প্ৰজন্মই বুজি পাব লাগিব যে আমি যাক নেতৃত্ব হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰিব গৈ আছোঁ বা যাক আমি আমাৰ শাসন ব্যৱস্থা গতাব গৈ আছোঁ তো তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে কিমানখিনি দায়বদ্ধতা কেনেকুৱা চিন্তা সেই চিন্তাৰ আমি মাপকাঠি বা পাৰ্থক্য বিচাৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মই এটা উদাহৰণ যদি দিওঁ যে আমি যি ধৰণে আমাৰ জন্মদিনটো পালন কৰোঁ উৎসাহেৰে আজি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱসটো ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই উৎসাহেৰে পালন কৰিব এইকাৰণে বিচাৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱসৰ মাধ্যমেৰে বা আজিৰ দিনটোৰ জৰিয়তে আমি এটা পণ ল'ব লাগিব যে আগন্তুক সময়ত সমগ্ৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো বচাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত যিমানখিনি হলত উপস্থিত আছোঁ আমাৰ প্ৰথমটো ষ্টেপ যে আমি য'ত নিজৰ হাতেৰে আমাৰ ভৱিষ্যতটো নিজৰ হাতেৰে আমাৰ ভাই ভণ্টিসকলৰ ভৱিষ্যতটো নিজৰ হাতেৰে আমাৰ সমাজখনৰ ভৱিষ্যতটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিম বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সমাজ ব্যৱস্থাটো আৰু আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো সুসংগঠিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো বচাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক সময়ত আপোনালোকে কনষ্ট্ৰাকটিভ ৱেত গঠনমূলক চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যাব বুলি মোৰ বিশ্বাস ৰাখি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰাকেশ দাস ডাঙৰীয়া এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ মুখ্য অতিথি আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমন্বয়ক তথা राष्ट्रीय मुखपात्र डॉक्टर संबित पात्रा जी हम आग्रह करेंगे कि वो अपना वक्तव्य से हम लोगों को अनुप्राणित करें भारत माता की भारत माता की भारत माता की आज वोटर्स डे है स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है हम सब के लिए ये गर्व का विषय है इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी आर सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी in such a way in Assam.
I take this opportunity to congratulate the President of Assam BJP Pradesh, Shri Dilip Saikia ji, a Member of Parliament and President of BJP, that he organized such a great event today. इस प्रकार से एक इतना अच्छा आपने आज व्यवस्था आयोजन यहाँ रखा है वोटर्स डे के दिन, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई दिलीप जी। मंच पर उपस्थित है, आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए दिलीप जी तो लगे ही हुए थे, मगर उनके साथ कदम से कदम मिला करके सर्वाधिक उत्सुकता के साथ जो लगे हुए थे, उनका नाम रविंद्र राजू जी है। एक तरफ आयु की दोनों स्पेक्ट्रम है, आप देखिए यंग एंड डायनामिक, ही इज ऑल्सो यंग एंड डायनामिक। एट बोथ एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, in the age limit, young and dynamism is something which depends on the mind. It's a mind game. It doesn't depend on your age. Age is just a number. So Ravindra Raju ji ने proof कर दिया है कि age is just a number. Enthusiasm और उत्साह is what matters. इसलिए दोनों हाथ उठाकर रविंद्र राजू जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मंच पर उपस्थित है मेरे पूर्व वक्ता बीजेवाईएम के अध्यक्ष राकेश दास जी, उनको बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। मैंने जनरल सेक्रेटरी दीपलू जी से पहले उनका नाम लिया क्योंकि आज उनके मोर्चा का कार्यक्रम है, मगर दीपलू जी भी अभी यंग है, डायनामिक है, और आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम वोटर ही होंगे ऐसे एज से लगता है ज्यादा है, मगर एज से लगता है कि ही स्टिल युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। आई एम जस्ट पुलिंग हिज लेग बिकॉज ही लुक्स सो यंग दैट ही कैन ऑल्सो बी सीटेड एज अ फर्स्ट टाइम वोटर एंड वी विल मिस इट। तो दीपलू जी को भी बहुत स्वागतम। यहाँ मौजूद है मंच पर तपन दास जी और हीरक ज्योति जी। तपन दास जी गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और हीरक ज्योति जी बीजेवाईएम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है गुवाहाटी के। बहुत बहुत आप दोनों को अभिनंदन। And most of all, the most important participants, my young friends who come from different corners of Assam and who would be voting for the first time in the election that Assam is going to face for the Vidhan Sabhas in 2026. A grand welcome to you all in this BJP कार्यालय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1950 में पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना तो आज के दिन ही उसका फाउंडेशन रखा गया 25 जनवरी। एंड सिंस 25th January is the foundation day of Election Commission of India. With the passage of time, Election Commission of India found that the young generation is not enrolling into the voters list. जो युवक हैं, जो युवतियां हैं, वो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो रही है, और युवकों के पार्टिसिपेशन में एक बहुत बड़ा गिरावट आया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय युवकों के कारण, उनके बलिदान के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। चाहे वो लाल बाल पाल हो, जितने भी आप देखेंगे, चाहे भगत सिंह हो, बड़े से बड़े जिन्होंने बलिदान दिया, जो बलिदानी थे, they were all young people, dynamic people, and they fought for the motherland, they fought for India. They laid down their lives, in fact. अपने जीवन की उन्होंने आहुति दी ताकि देश आजाद हो सके, ताकि देश आगे बढ़ सके। मगर धीरे धीरे युवकों का पार्टिसिपेशन कम हुआ, और जब यह रियलाइजेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ही फाउंडेशन दिवस 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में मनाया, और जो यंग वोटर्स थे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उनके लिए यह दिन समर्पित किया, 25 जनवरी का दिन। और आज के दिन 1 जनवरी को, साल के आरंभ के 1 जनवरी को आप लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में चढ़ता है, और 25 तारीख को आपको आपकी एपिक कार्ड, जो स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड है आपकी, वो आपको दी जाती है। आप में से कितने लोग यहां मौजूद हैं
जिनको एपिक कार्ड मिला है वो हाथ उठा सकते हैं क्या? मैं देख रहा हूं केवल 2 लोगों को एपिक कार्ड मिला है। मैं निवेदन करूंगा युवा मोर्चा अध्यक्ष से कि इसके बाद आपको यह देखना है कि जितने यहां हमारे भाई बहन बैठे हैं सभी को एपिक कार्ड मिले, ताकि दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑल्सो। फर्स्ट टाइम वोटर तो हैं, मगर उसके लिए जो दस्तावेज चाहिए वो दस्तावेज भी उनके हाथों में आना चाहिए। इसलिए वी ऑल हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड यू ऑल ऑल्सो हैव टू बी प्रोएक्टिव। आपको भी ये चिंतन करना होगा कि आप जाके एपिक कार्ड कलेक्शन करें अपना। यू शुड नो द प्रोसेस राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आपके अधिकार क्या हैं और आपके अधिकार के लिए आपको क्या करना है, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड नो। बहुत वर्षों तक मैंने देखा, और हम भी उसमें इंक्लूडेड हैं, इवन आई एम इंक्लूडेड इन दैट, हु यूज्ड टू फील वंस अपॉन अ टाइम कि हमारा क्या हो रहा है, ठीक है वो इलेक्शन हो रहा है, लोग वोट दे रहे हैं, कोई सरकार में आएगा। और नेता लोग तो जनरली पीपल थिंक कि नेता लोग तो ऐसे ही होते हैं, देश तो अपने आप ही चल रहा है। तो बहुत लंबे समय तक लोगों के मन के अंदर एक धारणा रहती थी, चलता है, मैं नहीं तो कोई नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई और कर लेगा, हमारे से क्या होता है। इसलिए बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत लोगों ने अपना नाम इलेक्टोरल रोल में चढ़ाया नहीं। मगर नाउ इट इज द टाइम दैट यू हैव टू बी सीरियस अबाउट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, if good people do not choose good representatives, then they have no right of crying and shouting when the bad ones become their representative. अगर अच्छे लोग अच्छे नेता नहीं चुनते हैं तो उनका अधिकार नहीं है बाद में रोने और चिल्लाने का कि अच्छे नेता क्यों नहीं है देश में, क्योंकि उसका बटन तो आपके हाथ के पास ही है। कौन अच्छा होगा, देश के लिए क्या अच्छा होगा, उसका बटन आपके पास है। आपने सही टाइम पे बटन नहीं दबाया, इसलिए सही आदमी चुन के नहीं आया। इसलिए जब बुरा आदमी आता है तो आप ये नहीं कह सकते हैं बुरा आदमी क्यों आ गया है। ओनली द वन हु वोटेड हैज द राइट टू शाउट एट हिम एंड आस्क, व्हाई आर यू नॉट वर्किंग फॉर अस, बिकॉज ही हैज वोटेड। तो इसलिए पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है। दिस इज द टाइम एंड दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अ डॉन ऑफ न्यू एरा हैज अराइव्ड इन इंडिया। भारतवर्ष में एक नया सुबह आरंभ हुआ है। नई सुबह के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, एक नई कल्पना के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और भारत का मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, वह मिशन है विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 अगर कोई स्वप्न नहीं देखेगा, इफ यू डोंट फिक्स एन एम्बिशन, इफ यू डोंट हैव अ गोल, naturally you will go astray, you will not move towards your goal. If you have a goal, if you have ambition, if you have a target, only then you will try day in and day out to achieve the target. दिन रात आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करेंगे। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस बनना है। आप दिन रात ट्यूटोरियल्स जाते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, तभी तो आप डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनते हैं। यू हैव अ सेट गोल। तो देश के लिए भी एक सेट गोल होता है, और हमारे भारतवर्ष के लिए मोदी जी ने एक गोल सेट कर दिया है, और वो गोल है विकसित भारत का। 2047 तक भारत शुड बी आत्मनिर्भर, भारत शुड बी विकसित। और उसके कारण हम सब का दायित्व है कि हम सब एकजुट होकर एक मत्तता के साथ परिश्रम करें, मेहनत करें और आगे बढ़े। मैं हमेशा कहता हूं, पीएम का अर्थ केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। पी से प्राइम और एम से मिनिस्टर नहीं होता है। पी से पसीना और एम से मेहनत होता है। पसीना और मेहनत के कारण आज मोदी जी जहां हैं वहां पहुंचे हैं। एक साधारण सा व्यक्तित्व जैसे आप आज बैठे हैं, अपने पूरे जीवन में अनुशासन के साथ एक साधारण सा
व्यक्तित्व जो साधारण से परिवार में जन्म लेता है, पसीने और मेहनत की बदौलत आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं वो। और आज अगर कहा जाए कि उनके पास जितनी एनर्जी है, उनके पास जितनी ऊर्जा है, शायद हम में भी उतनी ना हो। हम में तो कम है जो स्टेज में बैठे हैं, मगर आप जो यंगस्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स, प्लीज लुक एट हिज शेड्यूल। I mean, there's not a single day when you don't see him in 3 or 4 states or 5 states. From morning till evening, continuously, he is offering his services to the country and he looks fresh. कभी भी एक थके हुए प्रधानमंत्री को मैंने नहीं देखा है नरेंद्र मोदी। हमेशा एक ऊर्जावान और एक युवक प्रधानमंत्री को मैंने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। क्या कारण है? कारण है अनुशासन, डिसिप्लिन। सुबह सो के उठने से रात तक जो करते हैं 100% उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। whatever he does it 100%, and secondly, whatever he does with discipline. अगर यह मंत्र हमने अपने जीवन में सीख लिया तो स्वाभाविक रूप से कोई हमें हरा नहीं सकता है। और केवल मोदी जी नहीं, यह सौभाग्य का विषय है कि आसाम में हमारे पास मोदी जी तो केंद्र में हैं, आसाम में भी एक ऊर्जावान, यंग और डायनामिक चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। जब इस प्रकार के दो व्यक्तित्वों का ऊर्जा आपको मिल रही है तो स्वाभाविक रूप से it's but natural that Assam will move ahead with great speed, provided we also rein in ourselves into that great chariot. हमें भी चाहिए कि हम भी अपने आप को उस रथ के साथ जोड़ ले, उस यज्ञ का हिस्सा हम भी बन जाए, जिसमें ये दो बहुत बड़े परिश्रमी व्यक्ति मोदी जी और हेमंत बिश्व शर्मा आसाम को आगे लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं, बहुत कुछ कहने को है। मेरा फ्लाइट है 6 बजे, मैं जाऊंगा। मेरे कहने के पश्चात